So, very good afternoon to everybody, and thank you, Yashu Sharma ma'am, for such a generous and elaborate introduction. So I begin now. So, respected Chief Guest, Professor Anand Gautam Shukla sir, former IPS and VC Mewar University. Principal Ma'am, Professor Ritik Khanna ji, Professor Jitendra Viskarma ji, convener of this, and I think Dr. Dharmen Kumar ji, co-convener, coordinator. Nida Khan Ma'am, she contacted me many times. Thank you for that. Guest of honor, Professor Rashmi Rao ma'am, and Charulda Arya sir, Organizing Secretary. My dear friends, Professor Amit Kumar Singh ji, RSM College Dhampur, and Professor Maurya ji, they are all my very strong friends, deep-hearted friends. Other distinguished speakers, maybe there are some research scholars, I believe, and all those who are in a way, directly or indirectly, related to organizing this beautiful, successful today's seminar. I was approached by Jitendra sir first, तो मैं अपना लोड नहीं छोड़ता, दिल्ली में रहते हुए 39 years हो गए. I've got my college and everything from day one. कहीं बाहर अगर जाने का मौका मिलता है तो certainly एक प्रिविलेज ही नहीं, हम इसे फॉर्चून के रूप में देखते हैं. शायद दिल्ली में अगर मेरा डिपार्टमेंट कोई फंक्शन करे तो मैं ना जाऊँ, लेकिन कोई मुझे दिल्ली से बाहर बुला ले तो सच में जाता. और अगर कोई नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बुला ले तो दिल से दुआ देता हूँ जो चैम्बर, गैस चैम्बर से आप हमें निकल कर थोड़ी देर के लिए सही में सांस लेने का मौका दे रहे. सो थैंक यू दिस कॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, वर्धमान कॉलेज फॉर सच ए ब्यूटीफुल सेशंस. एंड मुझे जो टॉपिक दिया गया है दैट इज फेडरलिज्म, यानी संघवाद, डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी में we call it विकेंद्रीकरण, and cooperative governance, a pathway to decent भारत. See, I teach at Delhi University. थोड़ा सा मैं अपना लिमिटेशन बता दूँ. There are many students, they come from northeast, they cannot understand Hindi. There are many, they come from northern part of India, they cannot understand proper English. And there are many who can understand both the languages. So in a process, we have developed a habit of being bilingual. अपने आप इंडियन में अपने आप आता जाता रहेगा, because we are basically teachers, तो वो communication, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे देखूँगी. See, I think you might have had many sessions. आपने क्या होगा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बिल्कुल रहा होगा, गंभीर मंथन हुआ होगा. 5 trillion to 30 trillion, remaining only 22 years. This is a challenge, not only a vision. Certainly it's a possibility, but not so easy as a possibility, because for that, of course, any economics who have the basic understanding, इनको सामान्य समझ भी है. We are now at a GDP rate of 6%. Certainly not going to be so easy इस 22 साल में, but anyway, vision is vision. Target must be higher, and we must not change it. 5 trillion to 30 trillion economics certainly. So I'm not going to speak on economic aspect. मेरा जो एरिया है वो बेसिकली स्ट्रक्चर से ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन
की चीज में निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि structures are there for not only better governance, for good governance, for a smooth governance. The structures are also there for achieving certain economic targets. Is it clear? तो मैं वहाँ से अपनी बात रखूँगा. See, I have done also from you, apart from my doctorate and MPhil and all that. And I have done Constitution at length. 2 पेपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही था. जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ता था एग्जाम के समय खासकर, ऐसा लगता था कि इससे अच्छा डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है. भाई कुछ भी नहीं हो सकता. सच्चाई यही. वी डू कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, दूसरे कंपेयर्स. Constitution is at best a basic codification, a basic guideline. बाकी सिर्फ कागज पे जो स्ट्रक्चर लिखा उससे कुछ चीजें नहीं. When we think of federalism, संघवाद की जो बात करें, तो इन simplest possible manner, तो सबसे आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. That is about division of power between center and state. Simple. It's not center versus a state, not a state versus a state. सरकारिया कमीशन जब बना था तो इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी कि we are not in a favor of a strong state or a strong weak center or weak center and a strong state. हम चाहते हैं कि शुड बी स्ट्रॉन्ग भारत, स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट. रीजन तो ये. लेकिन दिस इज नॉट सो इजी. एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी नो कि दुनिया में जितने झगड़े के कारण है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वो कमांड का नेचर है. यू वांट टू कंट्रोल, यू वांट टू कमांड. And how we can control and command? By acquiring more and more and more and more power. जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये साफ है कि देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस. जो मॉन्टेस्क्यू का फॉर्मूला है बहुत क्लियर, बहुत क्लियर कि भाई लेजिस्लेशन का काम जो है कानून बनाना है. एग्जीक्यूटिव का कानून जो काम है, जो भी बना है उसको एग्जीक्यूट करना है. कानून बनाना आपका काम नहीं है. इन द प्रोसेस जो है आप लेजिस्लेट कर सकते हैं. जुडिशियरी से 1000 बार पूछा गया है कि डू यू मेक लॉज, क्योंकि हम जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में सुनते हैं, जुडिशियल ओवररीच के बारे में सुनते हैं. जुडिशियरी पे ये एक्यूजेशन बहुत बार रहा है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपर नहीं करते. खासकर मैंडोस वगैरह के बारे में जो रेट की बात करेंगे तो है. जुडिशियरी ने हमेशा कहा है कि नो, वी जस्ट वी डू आवर ड्यूटी, वी डोंट लेजिस्लेट. कानून बनाना हमारा काम. बट जो इस सेपरेशन ऑफ पावर के स्पिरिट में छिपा हुआ है, उसको शायद ही किसी ने ऑनर किया है. सच्चाई ये है. लेकिन जब मैं लॉ किया न्यूज से, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि लॉ सबसे बड़ी चीज नहीं. अगर लॉ से भी बड़ी चीज को है तो है स्पिरिट ऑफ लॉ. कानून बनाया गया वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों बनाया गया था, उसका एसेंस क्या था, वैल्यू सिस्टम क्या था, विजन क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए आज से नहीं, जब से हमारा सेटअप है स्ट्रक्चर का, आप क्लास इन बिटवीन इंस्टीट्यूशन हमेशा आप देखते हैं. और मजेदार चीज ये रहा है, जो दुखद भी है, जब भी एग्जीक्यूटिव पावरफुल हुई, उसने जुडिशियरी को बहुत वैल्यू नहीं किया. उसने जुरिडिक्शन में इंक्लॉज किया है. इमरजेंसी के समय जो 75 जो 79 77 का पीरियड है, एडीएम जबलपुर वर्सेस जो शुक्ला का है केस, 10 मिनट,
नाम और शिवकांत शुक्ला 1976 का ये हैबियस कॉर्पस को लेकर। तो जब भी एक इंस्टीट्यूशन पावर होता है ना, तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि दूसरे के डोमेन में बहुत इजीली क्रॉस करता है और करना चाहता है, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ साफ कहता है कि हमको क्रॉस नहीं करना। ये एक प्रॉब्लम है। अगर स्ट्रक्चर्स के बीच टकराहट होंगे, एग्जीक्यूटिव के अलग अलग मशीनरी में टकराहट होंगे, लेजिस्लेशन वर्सेस एग्जीक्यूटिव का टकराहट होगा, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का इंक्रोचमेंट का टकराहट होगा, तो दिक्कत आएगी। क्योंकि जो विकसित भारत है, इट इज नॉट ओनली अबाउट टर्निंग 5 ट्रिलियन इंटू 30 ट्रिलियन, सिर्फ वो एस्पेक्ट नहीं। गवर्नेंस इज फॉर एवरीबॉडी। 10% लोग आपके बहुत अच्छा कर जाए, जीडीपी ऑन एवरेज बहुत अच्छा हो जाए, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, तो इस स्ट्रक्चर में जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।